new subject, that is your gynecology. Sorry, obstetrics. Gynecology we have already finished. Gynae में एक topic बचा है, that is your contraception. So contraception we will deal with PSN. PSN में भी demography में contraception है, तो वहाँ पे we will deal with that. So first, let us look at the fundamentals of reproduction. So whenever there is fertilization, that means meeting of ovum and sperm, and there is formation of zygote. zygote के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो के बनने से पहले कुछ स्टेजेस होती है. सो zygote के बाद this is a morula, and morula is the 8 to 16 celled stage. During the formation, जब zygote 8 to 16 cells के बीच में होता है, then it is known as morula. और मोरुला ही जाके मीन्स इसी स्टेज में जाके ये यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होता है. कौन से डे पे होगा? ऑन द डे 4 आफ्टर ओव्यूलेशन. दैट मीन्स on the day 18 of the cycle it will enter into the uterine cavity. Then after entering inside the uterine cavity, enter करने के बाद पहले इसकी superficial implantation होती है. मीन्स superficially बीच में जाके it will attach itself to the endometrium very superficially. और ये superficial या central implantation एकदम बीच में है, तो इसका दूसरा नाम है central implantation. And it occurs on 6 days after fertilization. Fertilization के 6 days बाद, that is day 20 of the cycle. Then after superficial implantation, अब ये inward move करेगा and it will lead to deep implantation or you can say interstitial implantation. इस फिगर में देख सकते हो, एक पोल को ऑक्यूपाई कर लेता है और इसके नीचे भी एंडोमेट्रियम है और ऊपर भी एंडोमेट्रियम. दिस इज डीप इम्प्लांटेशन विच अकर्स ऑन डे 10 और 11 आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो क्वेश्चन आएगा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ऑन डे 11, और अगर साइकिल के हिसाब से पूछा जाए तो डे 24 to 25 of the cycle. This was regarding your implantation and types of implantation, which is superficial or central implantation and deep or interstitial implantation. Then next is your decidua. Decidua means the pregnant endometrium. The endometrium during pregnancy is known by the name of decidua. अब डेसिडुआ के 3 लेयर्स होते हैं. फर्स्ट इज द सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर. इसमें क्या होता है? इसमें डेसिडुअल सेल्स होते हैं. देन यू हैव सर्टेन ग्लैंड्स, डक्ट्स एंड डायलेटेड कैपिलरीज. ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी, सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर. सो दिस इज सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर. देन उसके बाद नेक्स्ट लेयर होते हैं योर इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर. इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर ऑल्सो नोन एज cavernous layer. इसमें क्या क्या होता है? It contains the uterine glands. It contains uterine glands, decidual cells and blood vessels. और what is the importance of this cavernous layer और intermediate spongy layer? इसकी importance है that placental separation. पार्चुरेशन के टाइम पे जब प्लेसेंटा सेपरेट होती है तो इस वाली लेयर के थ्रू होती है. So this layer helps in the placental separation, or placental separation occurs through the intermediate spongy layer. Then next is the basal layer, which is a thin basal layer. This is the thin basal layer. What is the use of this thin basal layer? इसमें भी certain glands are there and it is directly attached to the muscles of uterus. Uterine muscles के साथ ये attach होती है. एंड जो म्यूकस कोट का रीजनरेशन है, पहले क्या हुआ? फर्स्ट देयर इज सेपरेशन हो जाती है इस लेयर के थ्रू द इंटरमीडिएट लेयर. और जब सेपरेट होने के बाद जो बचता है
तो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो इसी थिन बेसल लेयर की वजह से होता है, बिकॉज आफ्टर रीजनरेशन ये बच जाता है, तो रीजनरेशन इस लेयर की वजह से होता है। लास्ट थिन बेसल लेयर हेल्प्स इन द रीजनरेशन ऑफ म्यूकस कोट। देन आफ्टर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन और योर सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, द ब्लास्टोसिस्ट एंटर्स into the compact layer of the decidua। और compact layer कौन सी है, जो सेकेंड और थर्ड लेयर के बीच में, दैट इज द कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द डेसिडुआ। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मोरुला के बाद की जो स्टेज होती है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। मींस मोरुला इज द 8 to 16 सेल्ड स्टेज। इसके बाद क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है और सेल्स जो है ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक मैनर में, एक बॉल शेप्ड मैनर में। सो जो पेरिफेरल सेल्स है, द पेरिफेरल सेल्स, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, दिस इज द पेरिफेरल सेल्स। सो पेरिफेरल सेल्स को बोलते हैं, इसका अपना अपना न्यूक्लियस है, दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। देन इसमें एक पोल की तरफ there is a mass of cells, mass of cells, this is known as inner cell mass। और बीच में एक कैविटी होती है, दिस इज नोन एज ब्लास्टोमियर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। सो मोरुला के बाद क्या होता है, मोरुला के बाद होता है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जब फर्दर सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन के बाद जब डीप इम्प्लांटेशन होती है तो इट अकर्स थ्रू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो ब्लास्टोसिस्ट को जो डेसिडुआ है वो कवर कर लेती है, द प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम डेसिडुआ उसको कवर कर लेती है। तो डेसिडुआ के सर्टेन पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज योर डेसिडुआ बेसालिस और सेरिटोना, मीन्स द बेसल लेयर, एकदम जो सबसे बेस पे है। तो दिस लेयर comes in contact with the blastocyst। सपोज दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, तो इसके साथ जो कांटेक्ट में लेयर आएगी दिस लेयर इज नोन एज डेसिडुआ बेसालिस। देन देयर इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, कैप्सूल मीन्स कवरिंग। तो इस लेयर को जो लेयर कवर करेगी दैट इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ रिफ्लेक्सा। This is the decidua capsularis or reflexa। and rest of the endometrium, जो बचे हुए endometrium है और decidua, that is the pregnant endometrium, ये जो बची हुई है this is known as your decidua vera और decidua parietalis। then in the space between decidua basalis and decidua vera, this space, ये जो बचा हुआ है इस स्पेस में समटाइम्स देयर इज साइक्लिकल स्पॉटिंग में अकर। एंड ये कब होगी, साइक्लिकल स्पॉटिंग मीन्स ब्लीडिंग 3 मंथ्स से 12 वीक्स और 12 वीक्स के बीच में, 12 वीक्स और 3 मंथ्स। एंड दिस इज नोन एज प्लेसेंटल साइन, दिस इज प्लेसेंटल साइन और यू कैन से प्लेसेंटल ब्लीडिंग। देन द प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन, नॉर्मल प्लेसेंटा कैसी होती है, so normal human placenta is discoid। why discoid, because it is disc like shape, एक डिस्क के जैसी शेप है, that is why discoid। then it is hemocoral, hemocoral, why it is hemocoral, because hemo means blood and the chorionic layer of the fetus comes in direct contact with the maternal blood, that is why it is known as hemochorial। and it is also known as deciduate। deciduate means decidua का मतलब होता है शेडिंग होना। एंड एट द पार्चुरेशन, जब बर्थ हो जाता है तो जो प्लेसेंटा है वो शेड ऑफ हो जाती है, निकलने लग जाती है अपने आप।
So that is why it is known as deciduate. So what are the three features of placenta? It is discoid, hemocoelal and deciduate. And placenta is made from two sources. ये हमेशा याद रखना, placenta सिर्फ maternal source से नहीं बनते, it is made from two sources. Placenta has fetal portion as well as the maternal portion. Fetal portion का नाम है chorion frondosum एंड मैटरनल पोर्शन का नाम है डेसिडुआ बेसालिस. इन दोनों को मिला के बोलते हैं बनती है प्लेसेंटा. फीटस का कोरियन फ्रोंडोसम पार्ट एंड मैटरनल पोर्शन इज द डेसिडुआ बेसालिस पार्ट. Then diameter of the placenta is 15 to 20 centimeter and thickness of placenta is 3 centimeter and weight of the placenta is 500 gram. Very very important. ये पूछते हैं. Weight of the placenta is 500 gram. Then ratio of weight of placenta and fetal body. Placenta और fetus body का ratio, weight का ratio कितना होता है? 1:6 means अगर placenta का weight 500 ग्राम है तो fetus का weight कितना होगा? 3 kg. Yes, very good. 3 kg और 3000 ग्राम. उसका 6 टाइम्स ज्यादा होगा. अगर प्लेसेंटा 300 ग्राम्स है तो कितना होगा वेट? 1800 ग्राम. 1800 ग्राम. सो ये रेशियो रहता है बिटवीन प्लेसेंटल वेट एंड द फीटल वेट. देन मेच्योर प्लेसेंटा में कितना ब्लड होता है? इट इज अराउंड 500 to 750 ml. This is also important. Then amount present in the intervillous space. ये जो खाली स्पेस है, दिस इज नोन एज इंटरविलस स्पेस. तो इस इंटरविलस स्पेस में कितना ब्लड रहता है? 150 ml. ये क्वेश्चन भी आता है. देन कौन से वीक पे प्लेसेंटल वेट एंड फीटल वेट बिकम्स इक्वल? इट बिकम्स इक्वल एट 17th week of pregnancy. And very very important question from here is this, that the macrophages present in placenta are known as Hofbauer cells. ये question बहुत बार आया हुआ है. Macrophage of placenta are known by the special name of Hofbauer cells. Then next is placental aging. कैसे placental की aging होती है placenta की? Through the fibrinoid degeneration. यहाँ पे fibrin connective tissue जो है वो जमा होने लग जाता है एंड दैट इज हाउ द फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन टेक्स प्लेस. और ये कैसे होगा? एट द जंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड डेसिडुआ. ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो अभी मैंने बताए थे वहां पे और डेसिडुआ के बीच में. लेट मी अगेन ड्रॉ. दिस इज द, ये जो आउटर सेल्स था दीज वर द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स और इसके नीचे में क्या है? डेसिडुआ बेसालिस. तो यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी प्लेसेंटल एजिंग एंड दिस लेयर इज नोन एज नीटाबुच लेयर और नीटाबुक लेयर. और ये नीटाबुक लेयर का फंक्शन क्या है? ये फर्दर ट्रोफोब्लास्ट को इसके अंदर इन्वेड नहीं होने देती. इट प्रिवेंट्स द इन्वेजन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इनटू द डेसिडुआ, ताकि वो एकदम ज्यादा उससे अटैच ना हो जाए. तो दिस इज डन थ्रू नीटाबुश लेयर. नीटाबुश लेयर जो है it prevents the trophoblastic invasion inside the decidua. So you can see in the figure also the Nitabusch layer. This is the Nitabusch layer. इसके नीचे जितने भी देखोगे they are the trophoblast. Cytotrophoblast ऊपर वाली लेयर है. Then we have syncytotrophoblast जिसका inner portion है and cytotrophoblast. और ऊपर नीचे दोनों cytotrophoblast है. So this and this outer is known as a Nitabusch layer. और ये सारा this is the maternal portion, Decidua besalis. So this layer is known as Nitabusch layer, which prevents the invasion of trophoblast inside the decidua. Then what are the diseases that can be transmitted through placenta? Very very important. Viral diseases
में रूबेला ट्रांसमिट हो सकता है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स एंड पोलियोमाइलाइटिस, ऑल दीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू प्लेसेंटा. In bacterial diseases, syphilis and tuberculosis. In protozoal diseases, Toxoplasma gondii and malarial parasite. Well, remember, malarial parasite can also be transmitted through placenta. Then, what are the vaccines to be given during pregnancy? So, CI means contraindicated. क्या क्या contraindicated है during pregnancy? मम्प्स वैक्सीन नहीं दे सकते, मीजल्स नहीं दे सकते, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, BCG एंड HPV. All these are contraindicated in pregnancy. Then minimum gap between live vaccine and pregnancy means pregnancy होने के पहले अगर लाइव वैक्सीन दिए तो 1 महीना पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. ये सारे लाइव वैक्सीन थे इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और अगर देना है तो प्रेग्नेंट होने के 1 महीने पहले देना होगा. देन अगर दे दिया 1 महीने से कम टाइम पे दे दिया तो इट डज नॉट मीन्स कि MTP करा लो, मतलब उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये एक इंडिकेशन नहीं है. अगर 1 महीने से कम टाइम पे किसी ने वैक्सीन लिया बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, लाइव वैक्सीन, देन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो. नो, दिस इज नॉट एन इंडिकेशन. देन TB, tetanus vaccine is given to all pregnant females. This is very important question. And कब देना है? First dose at first antenatal visit means as soon as the pregnancy is diagnosed, पहली डोज तभी देनी है. And second dose कब देनी है? After 4 weeks. Second dose is to be given after 4 weeks means 1 महीने के बाद. And अगर पेशेंट पिछले 3 सालों में टेटनस की वैक्सीन ले चुका है तो उसको 2 डोज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बूस्टर डोज देने से काम हो जाएगा. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? अ मदर इज प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम एंड शी वॉज प्रेग्नेंट 2 years बिफोर ऑल्सो, तो कितनी टेटनस वैक्सीन उसको देनी चाहिए? सो व्हाट विल बी द आंसर? एक बूस्टर डोज. यस, वेरी गुड. ओनली 1 बूस्टर डोज, दोनों डोज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पिछली प्रेगनेंसी जो है वो 3 साल से कम टाइम पे थी. 2 years ago she was pregnant. Is that clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then Tdap vaccine means tetanus, diphtheria and pertussis. Pertussis means whooping cough. And what is the other name of whooping cough? एक तो pertussis हो गया, और क्या बोलते हैं whooping cough को? 100-day cough. 100-day cough is known as whooping cough. So, Tdap vaccine or tetanus, diphtheria and pertussis vaccine, 1 dose between 27 to 36 weeks to all pregnant females को देनी है. ठीक है, कब देनी है? 27 to 36 weeks to all pregnant females. Then next topic is amniotic fluid. Amniotic fluid. So amniotic fluid भी it is also of the both maternal as well as fetal origin. ये क्वेश्चन भी आता है. तो प्लेसेंटा भी maternal और fetal part से बनी है, as well as amniotic fluid is also made from maternal as well as fetal origin. And it is completely replaced every 3 hours. हर 3 घंटे में ये नया बनता है, रिप्लेस होता है. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन? 500 cc पर आवर. 1 घंटे में 500 ml बनता है. दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन. एंड व्हेन इज द एमनियोटिक फ्लूइड मैक्सिमम? बिटवीन 36 to 38 weeks. कितना होता है? 1000 ml होगा. ये क्वेश्चन आता है, व्हेन इज द amniotic fluid maximum? So it is maximum between 36 to 38 weeks of pregnancy. और कितना होता है? 1000 ml. एंड उसके बाद 38 वीक्स के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू हो जाता है. एंड एट टर्म जब फुल्ली प्रेगनेंसी होती है तो इट बिकम्स 800 to 900 ml. देन नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ amniotic fluid. तो 98 to 99% it is water.
ओनली 1 to 2% इसमें सॉलिड्स होते हैं, विच इंक्लूड्स, सॉलिड में क्या क्या है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, लिपिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन एंड हॉर्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या हॉर्मोन्स है, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड रेनिन। प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड रेनिन। सो RIP हम याद रख सकते हैं, रेनिन, इंसुलिन एंड प्रोलैक्टिन आर प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड। एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, this is the composition. Then fetus swallows about 400 to 700 ml of amniotic fluid or liquid every day. तो यही उसका फूड है, 400 to 700 ml per day. Then what is the normal color of amniotic fluid? In early pregnancy it is colorless, and near term when the baby is going to be delivered तब उसका कलर चेंज हो जाता है, pale straw colored. पेल स्ट्रॉ कलर्ड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सफोलिएटेड लुनैगो। लुनैगो क्या है, एकदम जो बेबी के जो हेयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो हेयर्स है, दे आर नोन एज लुनैगो हेयर्स। So due to the presence of lunago hairs and the epidermal cells from the fetal skin, इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ड्यूरिंग द टर्म जो कलर जो है वो चेंज हो जाता है, फ्रॉम कलरलेस टू पेल स्ट्रॉ कलर। Then there are certain abnormalities with the color of amniotic fluid. तो कलर देख के हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर amniotic fluid का कलर ग्रीन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, if the color of the amniotic fluid is green, that means it is meconium stain. What is meconium? Stool passed by fetus. Very good, वो but it stress is में होता first stool passed by the fetus. फर्स्ट वर्ड नहीं भूलना यहाँ पे। सो ग्रीन कलर्ड कब होगा, जब बच्चे ने स्टूल पास कर दिया। एंड स्टूल पास क्यों हो गया, ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस, उसको सांस नहीं आ रही, या फिर द प्रेजेंटेशन इज ब्रीच, उल्टा है बच्चा, ट्रांसवर्स पोजीशन है, दिस इज यूट्रस और ऐसे है, द फीटस इज लाइंग लाइक दिस इज ट्रांसवर्स पोजीशन, और एक इन्फेक्शन है, लिस्टेरिया इन्फेक्शन। सो इन ऑल दीज कंडीशन द कलर कैन बी ग्रीन। गोल्डन येलो कलर किसमें होगा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के केस में, जिसमें क्या होता है, ड्यू टू द मेटरनल एंटीबॉडीज फीटस को प्रॉब्लम होती है और फीटस का जो ब्लड है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। देन ग्रीनिश येलो कब होगा, इन द ग्रीनिश येलो और सेफ्रन कलर मीन्स पोस्ट मेच्योरिटी, उसके पूरे 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कंप्लीटेड बट स्टिल द बर्थ हैज नॉट टेकन प्लेस। तो पोस्ट मेच्योरिटी में ग्रीनिश येलो कलर और सेफ्रन कलर विल बी देयर। देन डार्क कलर, अगर कोई हेमरेज हो गया, कंसील्ड हेमरेज, डार्क ब्राउन और टबैको जूस कलर इन केस ऑफ इंट्रायूटराइन डेथ। सो इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, so you have to remember this chart. Then next is volume of amniotic fluid. So as I have already told, maximum is between 36 to 38 weeks and that is around 1 liter or 1000 ml, and उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता है, उसके पहले भी सबसे कम था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और 1 लीटर हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। देन अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 30 to 100 सेंटीमीटर एंड एवरेज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। देन अम्बिलिकल कॉर्ड में 4 वेसल्स होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 2 अम्बिलिकल वेन, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 2 अम्बिलिकल वेन। एंड एज वी नो आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अम्बिलिकल आर्टरीज में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, और अम्बिलिकल वेन में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। देन
ये क्वेश्चन आता है अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती है, तो आंसर इज 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स। बट एट फोर्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन जब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होगा, राइट अम्बिलिकल वेन इज ओब्लिटरेटेड, ये राइट वेन जो है वो बंद हो जाती है। So how you can remember? You can remember by the mnemonic left is left. सिर्फ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो बच जाती है। So only left umbilical vein is left and right umbilical vein is obliterated, वो बंद हो जाती है। Then next is the fetus. So fetus के पार्ट्स है, फर्स्ट इज द ओव्यूलर और जर्मिनल पीरियड। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जाइगोट होता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनता है। सो ये जो ओव्यूलर या जर्मिनल पीरियड है, इट लास्ट फॉर हाउ मच टाइम, 2 वीक्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते बाद तक चलेगा। और यू कैन से जेस्टेशन के कितने वीक्स हो गए यहाँ पे, 4 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड एम्ब्रियोनिक पीरियड याद रखना हमेशा 8th वीक तक बच्चे को एम्ब्रियो बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड इज अप टू हाउ मेनी वीक्स, इट इज अप टू 8 वीक्स। एंड फीटल पीरियड कब तक रहेगा, फ्रॉम 8 वीक्स अप टू टर्म। 8 वीक के बाद जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसके पहले तक उसको फीटस बोलेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ फीटस, day 14 to day 21 after conception, post conception notochord develops. Notochord क्या है, this is the primitive structure of spinal cord. spinal cord का primitive form को बोलते हैं notochord. So 14 से 21 days के बाद ये डेवलप हो जाती है एंड डे 21 पे फर्स्ट हार्ट बीट डेवलप हो जाती है। देन 6 to 8 वीक्स में सारे मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बन जाती है। देन 18 to 12 वीक्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कंप्लीटेड एंड फीटल ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन ग्रोथ like factor 1, इंसुलिन एंड अदर ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ देख के कभी भी ग्रोथ हार्मोन टिक नहीं करना। फीटस ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है, इंसुलिन से होती है उसकी ग्रोथ। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 से होती है, IGF-1 एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स, बट नॉट द ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन में रहेगा ग्रोथ हार्मोन बट यू हैव टू गो फॉर इंसुलिन। देन साइट्स ऑफ हिमेटोपोइसिस, ब्लड कहाँ पे बनता है, हिमेटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। सो बाय डे 14 जब बच्चा 14 दिन का है पेट में तो योक सैक के थ्रू ब्लड फॉर्मेशन होती है। देन बाय द 10th वीक लीवर ब्लड बनाने लग जाता है एंड ग्रेजुअली लीवर से शिफ्ट होने लगती है साइट एंड ब्लड फॉर्मेशन कौन करता है, स्प्लीन एंड बोन मैरो आर द साइट्स फॉर योर हिमेटोपोइसिस। एंड नियर टर्म जब पैदा होने वाला है तब ओनली बोन मैरो इज द डोमिनेंट साइट फॉर हिमेटोपोइसिस। ये स्लाइड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट इज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। सो इनिशियली जो इरिथ्रोपोइसिस है, सारे जो आरबीसी है वो मेगालोब्लास्टिक होंगे, बड़े बड़े होंगे साइज में एंड नियर टर्म दे बिकम नॉर्मोब्लास्टिक, उसके बाद नॉर्मल शेप हो जाती है उनकी जब बच्चा पैदा होने वाला होता है। एट टर्म आरबीसी कितने होंगे, 5 to 6 मिलियन पर mm³ एंड हीमोग्लोबिन कितना होता है, 16.5 to 18.5 ग्राम पर सन। एंड फ्रॉम 24th वीक मीन्स 6 months, जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद सारा फीटल हीमोग्लोबिन starts to disappear and adult hemoglobin starts to appear. So at term कितना HbF होता है हीमोग्लोबिन फीटल टाइप का, 70 to 80%, and by the time the baby 6 to 12 months का हो जाता है तो सारा हीमोग्लोबिन turns into hemoglobin A or adult type of hemoglobin. Then fetal hemoglobin has greater affinity for oxygen due to lower binding with 2,3 DPG. ये इस एंजाइम से
उसकी लोअर बाइंडिंग है, इसलिए वो ऑक्सीजन को ज्यादा कैच कर सकता है। देन व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज 80 days. देन विच टेस्ट डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन आता है, फीटल ब्लड फ्रॉम मैटरनल ब्लड, इट इज सिंगल्स एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट यूज होता है फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यू कैन रिमेंबर बाय FSM, फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड को अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, सिंगल एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट। देन नियर टर्म यूरिन प्रोडक्शन कितनी होगी, बेबी विल यूरिनेट 650 ml per day or 400 to 1200 ml per day. This is the urine production near term. Then breathing movement कब start होंगे, 11 weeks में, 11 weeks of gestation पे बच्चे की breathing movement start हो जाती है, but 20th week तक the movements remain irregular. जो भी breathing movement है वो 20th week तक irregular रहते हैं। देन अगर हमें फीटल की लंग मैच्योर हुई या नहीं ये टेस्ट करना है, तो यू हैव टू डू लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो टेस्ट, और ये रेशियो मोर देन 2 होना चाहिए। सो टू टेस्ट फॉर द फीटल लंग मैच्योरिटी हम लोग क्या देखते हैं, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो विच शुड बी मोर देन 2। देन फीटल पेनक्रियास सिक्रेट इंसुलिन एज अर्ली एज 12 वीक्स। जब 12 वीक्स का फीटस हो जाएगा तब वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है, और ग्लूकागॉन हार्मोन 8th वीक ऑफ जेस्टेशन में ही बनाना स्टार्ट कर देता है। सो दिस स्लाइड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो फेस में क्या दिखाई देगा, यू विल सी क्लोआस्मा, ये जो ब्राउनिश डार्क स्पॉट्स हैं these are known as cloasma and they are seen after 24 weeks. 6 months के जब प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके आसपास दिखाई देंगे। Then very important from here is what should be the normal weight gain during pregnancy. It is 11 to 12 kg, जिसमें maternal weight gain is 6 kg and reproductive weight gain is 6 kg. And weight gain कब होगा, in the later months of pregnancy, लेटर पार्ट में ज्यादा वेट गेन होता है। एंड इफ देर इज रैपिड वेट गेन, बहुत जल्दी वेट गेन हो रहा है, कितना, 1 हफ्ते में आधे किलो से ज्यादा वेट गेन हो रहा है, या फिर 1 महीने में 2 kg से ज्यादा वेट गेन हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस फीमेल इज एट अ रिस्क फॉर डेवलपिंग प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया होने के उसमें चांसेस है। तो व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया, वी विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। प्री एक्लेम्शिया सिंपल मान लो कन्वल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, अलॉन्ग विद बहुत ज्यादा प्रोटीनूरिया एंड एडिमा। देन स्टैटिक फॉलिंग ऑफ वेट, तो एक कंडीशन है बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, और दूसरा है उसका वेट जो है कम हो रहा है। तो वेट कम होने का मतलब है देयर इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और या तो ग्रोथ कम है या फिर द फीटस हैज डाइड, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। Then this was regarding weight gain. Next is uterus. So weight of non-pregnant uterus is 50 to 80 gram, but weight of pregnant uterus is 1000 gram. And what is the weight of placenta? 500 gram. 500. Yes, very good, 500 gram. Then length of pregnant uterus is 35 centimeter. एंड एनलार्जमेंट कैसे होती है, थ्रू बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। यूट्राइन मसल्स अंडरगो बोथ हाइपरट्रॉफी as well as hyperplasia, means the cell increase in size also as well as the cells increase in number also. Then uterine blood flow, 750 ml blood flow होता है in the uterus. Then next and very important are Braxton Hicks contraction. Braxton Hicks contraction क्या होते हैं, इसके चारों पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, दे आर इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पैस्मोडिक एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहेंगे, बट इस कॉन्ट्रैक्शन का सर्वाइकल डायलिटेशन पे कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो सर्विक्स डायलेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
सो दीज आर फेल्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड इसका करेक्टर क्या है? इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पैस्मोडिक एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू रिमेंबर, ये क्वेश्चन आता है। देन ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होंगे? कोलेस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क ऑफ प्रेगनेंसी, इट कैन बी स्क्वीज्ड एज अर्ली एज 12 वीक्स। 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही ये दिखाई देने लग जाता है। देन लेंथ, सॉरी, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, ब्लड में क्या क्या चेंजेस होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो इंक्रीज क्या क्या होगा? द ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 30 to 40%, प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, रेड ब्लड सेल वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज, रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एंड हीमोग्लोबिन मास विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि आरबीसी की वॉल्यूम तो so as the RBC volume is increasing, so hemoglobin mass is also increasing. Then WBC count is also increasing, especially the neutrophils are increasing. Oxygen carrying capacity of the blood also increases. इसलिए जब हम रेस्पिरेटरी चेंज में देखेंगे तो टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है एंड ऑल्सो द वाइटल कैपेसिटी इंक्रीजेस. Then all the clotting factors increase except clotting factor 11 and 13 जो है वो डिक्रीज होंगे. तो ये दोनों इधर लिखे हुए. तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं. सो क्लॉटिंग फैक्टर किस में हेल्प करता है? दे हेल्प इन कोएगुलेशन. तो इसलिए प्रेगनेंसी को बोलते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेट. प्रेगनेंसी इज अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट एज ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर इंक्रीज. एंड सबसे ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर 1 इंक्रीज करता है, सीरम फिब्रिनोजेन, विच इंक्रीजेस बाय 50%. एंड योर ESR, erythrocyte sedimentation rate, also increases by 4 times. So what is the name of different clotting factors? Anyone? 1 का नाम तो मैंने बता दिया. क्लॉटिंग फैक्टर 1 is known as fibrinogen. क्लॉटिंग फैक्टर 2 का नाम क्या है? मैम प्रोथ्रोम्बिन. Yes, very good. 3, थ्रोम्बोप्लास्टिन. yes, 4 कैल्शियम. 5 स्टेबल, नहीं सॉरी 5 लेवाइल फैक्टर. yes, 6 नॉट नोन. 7 स्टेबल फैक्टर. yes, and 8 एंटी हीमोफिलिक. yes, 9 क्रिसमस. 10 स्टुअर्ट. 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. 12 हैकमैन फैक्टर and 13 fibrin stabilizing factor. very good. So ये सबको याद होना चाहिए. इसमें से कोई भी आ सकता है. that which factor is known by which name. So all of you just try to memorize these clotting factors. Then क्या क्या decrease होता है? hematocrit value will decrease. क्योंकि hematocrit value क्या होती है? anyone? Okay, the blood cells present in the plasma. So पहले ये 4 ब्लड सेल्स थे इतने प्लाज्मा में. अभी क्या है? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो हेमाटोक्रिट विल डिक्रीज. अभी यही 4 सेल्स इतने प्लाज्मा में हैं, तो दैट इज व्हाई हेमाटोक्रिट इज डिक्रीजिंग. देन डिक्रीज्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम मींस कितने आरबीसी है? दिस इज द आरबीसी और ऊपर क्या है? दिस इज द प्लाज्मा. तो ये इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम. तो पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम हो जाएगी. देन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विल ऑल्सो डिक्रीज. क्योंकि यहाँ पे हमने देखा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गई. प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गई तो ब्लड जो है वो कम गाढ़ा हो जाएगा. तो विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस. हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस. लेकिन अगर हीमोग्लोबिन मास पूछेंगे तो मास इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है. प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस. प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस. और ये जो प्रेगनेंसी के टाइम प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं बिनाइन जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. एंड ऑलरेडी टोल्ड क्लॉटिंग फैक्टर 11 और 13 सिर्फ डिक्रीज होते हैं
बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में क्या होगा, एपेक्स बीट जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, दिस इज योर क्लैविकल एंड दिस इज योर स्टर्नम। So this is your apex. Apex का होता है left fifth intercostal space and medial to the mid clavicular line. Medial to the mid clavicular line. तो ये क्या होता है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस ये एपेक्स जो है शिफ्ट हो जाता है। एपेक्स शिफ्ट इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और इट विल मूव आउटवर्ड, बाहर की तरफ। नॉर्मली ये मीडियली होती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट विल मूव 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन। देन एक कॉन्टिन्यूअस हिसिंग मर्मर सुनाई देगा ओवर द ट्राइकस्पिड एरिया विच इज नोन एज मेमरी मर्मर। एंड व्हाई दिस मेमरी मर्मर इज हियर्डिंग, ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द मेमरी वेसल्स। देन कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम पूरा इंक्रीज हो गया तो कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेस बाय 40%। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर, जब मदर को लेबर पेन हो रहा है तब कार्डियक आउटपुट और ज्यादा इंक्रीज होता है बाय 50%। एंड इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इट विल इंक्रीज बाय 80%। और इतना ज्यादा जब इंक्रीज हो जाता है तो इस वजह से हार्ट फेलियर के चांस आर मैक्सिमम following the postpartum। and cardiac output 1 आवर के बाद, बच्चे के बर्थ के 1 आवर के बाद कार्डियक आउटपुट जो है नॉर्मल होता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में टाइडल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, बट वाइटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहती है। देन लिवर एंड गॉल ब्लैडर, सारे लिवर फंक्शन टेस्ट अनचेंज्ड है एक्सेप्ट योर एल्कलाइन फॉस्फेटेज विच इज इंक्रीज्ड। Renal system में GFR glomerular filtration rate increases by 50%. So GFR increase by 50%. Then diagnosis of pregnancy. First of all, what is the normal duration of pregnancy? It is 9 calendar months plus 7 days or 280 days or 40 weeks. This is the normal duration of pregnancy. So first trimester में क्या क्या symptoms रहेंगे? And first trimester is first 12 weeks is first trimester. Amenorrhea will be there, means no menses, morning sickness, सुबह उठने के बाद nausea vomiting फील होगी, frequency of micturition, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, breast discomfort and there will be fatigue. साइंस क्या होंगे, ब्रेस्ट में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे इन द 6 to 8 weeks and Montgomery's tubercles are prominent. These are Montgomery's tubercle. ये धीरे धीरे बहुत prominent होने लग जाते हैं। And vaginal signs में you will see 2 signs, Jacquemer signs और Chadwick sign and Oceander sign. So Jacquemer और Chadwick sign का मतलब क्या है? It is the bluish discoloration of vestibule and anterior vaginal wall. Vagina कि एंटीरियर वॉल में ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाती है एंड दिस साइन इज ऑब्जर्व्ड एट 8th वीक। ये साइन का नाम आएगा और ये कब दिखाई देता है ये टाइम पूछा जाएगा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन ये भी पूछा जाता है। देन ओशिएंडर साइन में क्या होगा, इंक्रीज्ड पल्सेशंस इन द वेजाइना एंड ये भी 8th वीक में आता है। देन सर्वाइकल साइन में कौन सा साइन है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुडल साइन इज देयर। गुडल साइन मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट होने लग जाती है और उसकी कंसिस्टेंसी कैसे होगी, जैसे सॉफ्टनेस लिप्स की होती है उतने सॉफ्ट हो जाएंगे सर्विक्स एंड दिस इज सीन और ऑब्जर्व एट 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जबकि नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स की फीलिंग कैसी होती है, जैसे नोज की कंसिस्टेंसी होती है वैसा, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द सर्विक्स बिकम्स सॉफ्ट like that of lips and it comes by the 6th week of pregnancy. This is Goodell sign. Then uterine changes क्या क्या होंगे, at 6 week
उसका साइज कितना होगा, हेंस एग के जितना। एट 8th वीक द साइज इज दैट ऑफ क्रिकेट बॉल। एट 12th वीक द साइज इज दैट ऑफ द fetal head. These are the size of uterus size at different weeks. Then shape इसकी globular shape होती है। कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। देन इसमें भी क्या क्या साइंस है, फर्स्ट इज पिस्कासेक्स साइंस। पिस्कासेक्स साइंस इज asymmetrical enlargement of the uterus due to lateral implantation। क्योंकि स्टार्टिंग में इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं हुई है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में asymmetrical enlargement of the uterus is seen and this sign is known as Piscasex signs. Next is your Hager's sign. So this is how we look for Hager's sign. So 2 fingers you have to put through the vagina and the other hand will be placed above the uterus from the abdomen. So एक हाथ from the vagina, the fingers will go inside the vagina and the other hand, जो दूसरा hand है, that will be placed on the abdomen but behind the uterus. So you will see that both the fingers, you will feel कि दोनों fingers जो है एक दूसरे के opposite आ रही हैं and this is due to softening of the isthmus. यूट्रस का जो isthmus part है उसमें softening होने की वजह से, soft होने की वजह से ये दोनों फिंगर एक दूसरे को टच कर रही है and this is observed in 6th to 10th week of pregnancy. Hager sign 6th to 10th week. Then Palmer sign, when you will do bimanual examination, so you will feel uterine contraction and these uterine contraction are regular and rhythmic. अगर irregular और irrhythmic contraction है, that are Braxton Hicks contraction. लेकिन अगर contraction regular और rhythmic है, तो this sign is known as Palmer sign and this is observed between 4th to 8th week of pregnancy और 10th week आते आते ये contraction जो है disappear हो जाती है. So this is all the signs I have clubbed in one table for quick revision. अभी तक जो भी साइन पढ़े वही है इसमें. Then next is investigations, क्या क्या करेंगे to diagnose pregnancy in first trimester. First are the immunological test. पहला है urine test. Urine test first void urine, सो के उठने के बाद जो first urine है वो लेना है but not midstream. ऐसा नहीं है थोड़ा सा पास होने के बाद फिर यूरिन कलेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज मिड स्ट्रीम यूरिन. इसमें पहला ही यूरिन लेना है और जैसे ही वॉइडिंग स्टार्ट होगी, यूरिन आना जैसे ही स्टार्ट होगा वही यूरिन कलेक्ट करना है. एंड यूरिन टेस्ट कब से कब तक पॉजिटिव होता है, फ्रॉम 10 to 11 days after conception. And this test is not reliable after 12 weeks of pregnancy. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यूरिन टेस्ट इज नॉट रिलायबल. देन एलाइसा टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, इट कैन डिटेक्ट HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, 5 days बिफोर द फर्स्ट मिस्ड पीरियड. पीरियड मिस होने के 5 दिन पहले ही ये डायग्नोज कर सकता है HCG इन द यूरिन. देन रेडियो इम्यूनो एसे RIA, ये और भी जल्दी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकता है, just 8 to 9 days after ovulation. Then through USG 5 weeks पे you can see the gestational and yolk sac. ये क्वेश्चन आया हुआ है, this is a previous year question. And fetal pole and cardiac pole will be seen in the 6th week through USG. और fetal heart rate अगर USG के साथ Doppler effect लगा देंगे तो 10th week पे हम लोग सुन सकते हैं the fetal heart sound. और थ्रू द स्टेथोस्कोप 20th वीक पे सुनते हैं. ठीक है, जस्ट डबल इट. कहीं कहीं पे बुक में 18 to 20 वीक है, तो स्टेथोस्कोप से 18 to 20 वीक पे सुन सकते हैं, बट थ्रू USG डॉपलर वी कैन लिसन इन द 10th वीक. देन देयर इज CRL, क्राउन रम्प लेंथ. क्राउन रम्प लेंथ से भी हम लोग प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं. सो व्हाट इज क्राउन रम्प लेंथ, इसमें क्या है, बिटवीन 9 to 12 वीक्स में हम प्रेगनेंसी के एज का पता लगा सकते हैं. कैसे पता लगाएंगे, लेंथ ऑफ फीटस फ्रॉम वर्टेक्स टू कॉक्सिस. तो ये हमें लेंथ लेनी है,
एंड दिस इज नोन एज क्राउन रम्प लेंथ। वर्टेक्स से लेके कॉक्सिक्स तक जितनी लेंथ है वो इन सेंटीमीटर, उसमें 6.5 प्लस कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू द वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये सिर्फ स्टार्टिंग के 9 to 12 वीक्स के लिए ही एप्लीकेबल। सपोज अगर किसी बच्चे की क्राउन रम्प लेंथ आती है 8 सेंटीमीटर, उसमें हमें प्लस करना है 6.5 सेंटीमीटर, तो इट विल बी अराउंड 14, जो उसका वीक ऑफ प्रेगनेंसी है 14 वीक के अराउंड है बच्चा। एंड नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ भी कभी कभी पूछता है, इस बार पूछा था यूपीपीएससी में, तो इट इज 40 to 50, somewhere around 40 to 50 centimeter. Then best parameters for estimation of fetal age. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें फीटस की एज का पता लगाना है, so best parameter you have to use is crown rump length. In second trimester it is the biparietal diameter. फीटस के जो हेड के दो पैराइटल एमिनेंस है, सपोज दिस इज द फीटल हेड, सो दिस इज द पैराइटल एमिनेंस, पैराइटल बोन्स में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो डायमीटर है दैट विल बी यूज्ड एज द पैरामीटर फॉर एज एस्टिमेशन। थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमर लेंथ इज यूज्ड and overall best parameter for estimation of fetal age is crown rump length. This table is very important, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। Then next is your second trimester. Second trimester starts from 13th week up to the 28th week. और इसमें क्या फील होगा? क्विकनिंग। क्विकनिंग सब्जेक्टिव फीलिंग है, एक्टिव फीटल मूवमेंट विच इज फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट विमेन। प्रेग्नेंट विमेन को फील होगा अंदर एज इफ समथिंग इज मूविंग। सो प्राइमी ग्रेविडा में जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसको 18th वीक में आएगा ये, एंड मल्टी ग्रेविडा में 16th वीक। देन ब्रेस्ट चेंजेस, सेकेंडरी एरियोला डेवलप्स, एंड ये कब आएंगे? 20th वीक में। एब्डोमिनल चेंज, ऐसे एक डार्क पिगमेंटेड लाइन दिखाई देगी, दिस इज नोन एज लीनिया नाइग्रा, ये 20th वीक में आती है। देन पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, हम एब्डोमेन पे हाथ लगा के फील कर सकते हैं फीटस के डिफरेंट पार्ट्स को, ये भी 20 वीक्स। देन एक्सटर्नल बेलोटमेंट, सो दिस इज एक्सटर्नल बेलोटमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, एक हाथ से यू विल प्रेस ओवर द एब्डोमेन, तो दूसरे हाथ में हमें इम्पल्स रिसीव होगी, तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल बेलोटमेंट। और ये इम्पल्स क्यों रिसीव हुई है? ड्यू टू द फीटल मूवमेंट। So it is elicited at 20 weeks by a push to the fetus parts with one hand placed abdominally and दूसरा हाथ जो है it will receive the impulse. Then height of the fetus at 12 weeks ये एकदम suprapubic region में रहेगा। At 12 weeks there is a suprapubic bulge. At 16 weeks किसके बीच में आ जाएगा? Between symphysis pubis and umbilicus. Umbilicus and symphysis pubis के बीच में। Then at 24 weeks it comes at the level of umbilicus. यहाँ पे यूट्रस इतनी स्ट्रेच हो जाएगी। And at 28th week it will be between umbilicus, umbilicus यहाँ से इसके बीच में, and ये जिफी स्टर्नम है, स्टर्नम के अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बीच में होगी। एंड एट 32 वीक्स इट कम्स एट द जिफी स्टर्नम समवेयर हियर। उसके बाद नीचे जाके थोड़ा और ऊपर जाके ये नीचे डिसेंड होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज नाउ द बेबी हैज टू कम आउट, तो पूरा हाइट पे जाके फिर से नीचे आने लग जाती है। देन ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप से जब सुनेंगे तो फीटल हार्ट साउंड इज द मोस्ट कंक्लूसिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, लेकिन हमें ट्राइमेस्टर याद रखना है। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर से
सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट साउंड इज द मोस्ट कॉन्क्लूसिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 18th to 20th वीक में हम स्टेथोस्कोप से उसको सुन सकते हैं, बट थ्रू यूएसजी कब सुन सकते हैं? सेवन वीक्स। नो, 10 वीक्स। अभी बताया ना, उसका जस्ट डबल कर देंगे तो स्टेथोस्कोप और हाफ कर दोगे तो यूएसजी डॉपलर। Then what are the conditions where height of the uterus is more than the period of amenorrhea? So mistaken dates, अगर गलत डेट कैलकुलेट हुई है तब ये हो सकता है कि लगेगा कि हाइट ऑफ यूट्रस इज मोर देन द पीरियड ऑफ एमिनोरिया। जब से उसके मेंसेस बंद नहीं हुए उससे ज्यादा हाइट ऑफ द यूट्रस है। अभी हमने देखा कि इतने 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 वीक्स पे ये हाइट होनी चाहिए यूट्रस की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब से उसके मेंसेस बंद नहीं हुए उससे ज्यादा बड़ी यूट्रस है। तो अगर डेट मिस्टेकन हो गई, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इंक्रीज हाइट ऑफ यूट्रस। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो हाइट ज्यादा होगी। पॉलीहाइड्रा अमीनोज, बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। तो व्हाट इज पॉलीहाइड्रा अमीनोज? मोर देन 2000 ml एमनियोटिक फ्लूइड को बोलते हैं पॉलीहाइड्रा अमीनोज, उसमें भी हाइट ज्यादा होगी। बिग बेबी जो कि डायबिटिक मदर को होता है। देन पेल्विक ट्यूमर्स, ओवेरियन और फाइब्रॉइड्स, हाइडेटिफॉर्म मोल एंड कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज, इन सब केस में हाइट ऑफ द यूट्रस ज्यादा होगी। Then there are conditions where height of the uterus is less than the period of amenorrhea. Again, इसका भी मोस्ट कॉमन कॉज है मिस्टेकन डेट, गलत डेट कैलकुलेट हुए। कभी कभी गांव में क्या होता है, फीमेल्स को अपने LMP ही नहीं पता, तो रॉन्ग डेट कैलकुलेशन की वजह से ऐसा लगेगा कि इसके यूट्रस की हाइट उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए। देन सेकेंड इज स्कैंटी लिक्वर, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, उसमें भी हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, फीटस की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, या फिर द फीटस हैज अंडरगॉन डेथ। देन थर्ड ट्राइमेस्टर, 24 वीक्स के बाद का जो टाइम है दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर अप टू द टर्म। सो फंडल हाइट इसमें इंक्रीज करती जाएगी। देन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये इंक्रीज होती रहेंगी एंड दे विल बिकम मोर एविडेंट। अब इसमें क्या होगा, फीटल मूवमेंट एंड फीटल पैल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स इज रेयरली फेल्ट, इतना ज्यादा फील नहीं होंगे फीटल पार्ट्स। देन फीटल एज इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय थर्ड ट्राइमेस्टर में, फीमर की लेंथ से हम फीटल एज का पता लगाते हैं इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। देन देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज योर लाई। लाई क्या होता है? रिलेशन बिटवीन long axis of fetus and long axis of uterus. Long axis of fetus और uterus के बीच में जो relation है that is known as lie. And most common lie क्या होती है? Most common lie is the longitudinal lie. ये दोनों longitudinal lie है। So long axis of uterus and long axis of fetus के बीच में जो relation है that is known as lie. So this is the oblique lie and this is the transverse lie. The next terminology is presentation. Presentation किसको बोलते हैं? The fetal part which occupy the lower pole of the uterus. जैसे कि इसमें lower pole में क्या है? ये है। So this presentation is known as cephalic. इसमें क्या है? lower pole में पैर वाला पोर्शन है, this is known as podalic. So जो पार्ट लोअर पोल को ऑक्यूपाई करेगा that is known as the presentation. तो longitudinal line में most common presentation is cephalic. अदर प्रेजेंटेशन क्या है? पोडालिक, जहाँ पे पैर फैले थे। शोल्डर प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। एंड देर आर सर्टेन पोजिशन जहाँ पे एक से ज्यादा पार्ट्स लोअर पोल में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। सो कंपाउंड प्रेजेंटेशन वेयर मोर देन वन फीटल पार्ट आर ऑक्यूपाइंग द lower pole of the uterus. The next term is presenting part. Presenting part क्या है? The
part of the presentation which overlies the internal os. इस presenting part में ऐसा part जो internal os के सिर्फ ऊपर है एकदम, ठीक है, cervix का जो internal os है उसको जिसने cover किया है that is known as the presenting part. So इसमें अगर हम देखें तो cephalic में this is the vertex. अगर हेड पहले है तो प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, बट कौन सा पार्ट इंटरनल ऑस को कवर किए है? वर्टेक्स. सो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट विल बी वर्टेक्स. सो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स. क्योंकि सिफेलिक प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली थ्रू दिस फिगर. यहाँ पे वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट. सो कभी कभी ये यहाँ पे क्या है, हेड इज फ्लेक्स, तो कभी कभी हेड जो है डी फ्लेक्स हो सकता है, पूरा फ्लेक्स नहीं है, तो इसमें भी प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स ही रहेगा. देन हेड जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, ठीक है, उसमें ब्राउ विल बी द प्रेजेंटिंग पार्ट. एंड पूरा ही हाइपर एक्सटेंडेड हेड है तो उसमें फेस विल बी द प्रेजेंटिंग पार्ट, क्योंकि फेस जो है इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है. देन नेक्स्ट इज द एटीट्यूड. सो फीटल के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में जो रिलेशन है, ठीक है, द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फीटस विद ईच अदर इज नोन एज एटीट्यूड. और यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है? सारे पार्ट्स जो है फ्लेक्स होते हैं. सो यूनिवर्सल एटीट्यूड इज ऑफ फ्लेक्शन. You have seen in this figure all the parts are flexed. So this is known as the attitude, and universal attitude or most common attitude is, you can say, is the flexion. सारे parts आपस में flexed है. Then denominator क्या है? It is a bony point on the presenting part which comes in the relationship with different quadrants of maternal pelvis. सपोज दिस इज द मेटरनल पेल्विस. तो ये जो मेटरनल पेल्विस है ये 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो हर एक क्वाड्रेंट में जो बोनी पोर्शन आएगा दैट इज नोन एज द डिनोमिनेटर. सो वर्टेक्स पोजीशन में कौन सा पार्ट इधर उधर घूमता है इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द मेटरनल पेल्विस? ऑक्सीपुट. अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो चिन जो है वो हर एक क्वाड्रेंट में जाती है ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द फीटस. ब्राउ प्रेजेंटेशन में फ्रंटल एमिनेंस. ब्रीच प्रेजेंटेशन में जहाँ पे बच्चा उल्टा है तो सेक्रम. एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन में एक्रोमियन. ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है. तो ऐसे इसको डिवाइड करते हैं मेटरनल पेल्विस को 8 पार्ट्स में, और हर एक एंगल कितना है 45 डिग्री का, क्योंकि सर्कल का पूरा कितना होता है 360 डिग्री. तो हम अगर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एवरी एंगल विल बी ऑफ 45 डिग्री. सो वही डिनोमिनेटर था. डिनोमिनेटर क्या है? ऐसा बोनी पार्ट जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के कॉन्टैक्ट में आ रहा है. देन नेक्स्ट टर्म इज द पोजीशन. पोजीशन क्या है? It is the relation of denominator to different quadrants of the pelvis. And pelvis को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 8 डिफरेंट पार्ट्स में, and each angle is of 45 degrees. तो उसके हिसाब से डिफरेंट पोजीशन है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन. दिस इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स. LOT means लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स. LOA means लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर. OA means occipito-anterior portion. ROA means right occipito-anterior position. ROT means right occipito-transverse position. So these are the different positions. Then vertex occupying the left anterior quadrant is the most common one. You can see this is the most common one, 40%. बट यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है. फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन, सेकंड वर्टेक्स पोजीशन, थर्ड वर्टेक्स पोजीशन एंड फोर्थ वर्टेक्स पोजीशन.
ये किस टर्म में? व्हेन द बेबी इज टर्निंग इनसाइड द पेल्विस, जब वो पैदा होने वाला है तो उसके सर को थोड़ा रोटेट होना पड़ता है टू कम आउटसाइड. सो फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और यही मोस्ट कॉमन वर्टेक्स पोजीशन है. क्वेश्चन में अगर होगा तो LOA ही हमें टिक करना है. दिस इज द LOA, ये वाला. ठीक है. बेबी ऐसे रहता है तो उसको घूम के ऐसे आना पड़ता है टू कम आउटसाइड, इसलिए ये वाली पोजीशन मोस्ट कॉमन है. बट अगर ओवरऑल पूछेंगे तो LOT इज मोस्ट कॉमन. LOT इज मोस्ट कॉमन. लेकिन व्हेन इट विल टर्न अराउंड तो ये वाली पोजीशन सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाएगी, इसलिए आंसर LOA होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. बाकी अगर बेबी इस राइट क्वाड्रेंट में था तो इट हैज टू कम लाइक दिस, ROA. तो ये सेकंड वर्टेक्स पोजीशन है. थर्ड वर्टेक्स पोजीशन इज योर LOP, ROP एंड फोर्थ इज LOP. मीन्स अगर इस क्वाड्रेंट में बेबी है तो उसको इस तरफ टर्न होना पड़ेगा. जब ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, बच्चा उल्टा होता है तो उसको इधर से इधर आना पड़ेगा, और अगर वो लेफ्ट में जाता है तो इधर से इधर आना पड़ेगा. So this is the third vertex and this is the fourth vertex position. Is that clear? Yes. Okay. So that's all for today, and this completes the first class for obstetrics.